Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I'm Anubha Rohadgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. धन्यवाद अनुभा और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे। आज सोमवार है, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा। Benchmark domestic stocks climb more than 1% to hit fresh record highs. Sensex closes above 51,000 mark. Nifty settles above 15,000 mark. Global stocks log gains amid optimism over economy recovery. And Brent prices rise to trade beyond $60 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार 1% से अधिक की वृद्धि से नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। सेंसेक्स 51,000 के ऊपर हुआ बंद। निफ्टी ने 15,000 के स्तर को किया पार। अर्थव्यवस्था में सुधार से बंधी उम्मीदों के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में बढ़त का रुख और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम बढ़कर $60 प्रति बैरल से ऊपर। शुरुआत सबसे पहले सेंसेक्स से ही कर लेते हैं। आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजार 1% से भी अधिक के उछाल से एक बार फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच लगातार छठे सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 51,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 15,000 के स्तर को पार कर गया। सेंसेक्स 1.22% की वृद्धि से 617 अंक बढ़कर 51,349 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.28% की वृद्धि से 192 अंक ऊपर 15,116 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां पर भी तेजी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.53% की बढ़त में रहे। Benchmark domestic stocks today surged more than 1% to hit fresh record highs. The Sensex and Nifty climbed for the sixth straight session amid positive global market cues. The Sensex closed above 51,000 mark while the Nifty settled above 15,000 level. The Sensex climbed 617 points or 1.22% to finish at 51,349. The NSE Nifty also surged 192 points or 1.28% to end at 15,116. The broader market at BSE also gained, outperforming the Sensex. The BSE mid-cap index rose 1.5% and the BSE small-cap index appreciated 1.53%. In the Sensex pack, shares of 25 companies gained while 5 fell. Mahindra & Mahindra was the top gainer as it climbed 7.2%, followed by Bajaj Finserv, which gained 3.2%. Bharti Airtel appreciated 2.8% and Power Grid surged 2.6%. Infosys gained 2.5%. On the other side, Hindustan Unilever declined 1.4%, Kotak Bank fell 1.3% and Bajaj Finserv slipped 0.7%. In sectoral indices, 18 out of the 19 sectors gained except fast-moving consumer goods, which fell 0.5%. Metal and auto, both sectors gained 3% and industrial
sector rose 2.6%. Telecom, consumer goods, utilities and consumer discretionary goods and services climbed around 2.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,689 companies appreciated while 1,345 fell. Shares of 193 companies remained unchanged. And now to answer the queries of our listeners, we have online Mr. Harveer Singh, editor, Rural Voice. Mr. Singh, welcome to the program. Thank you. And we already have a listener who's connected to us. This is Pankaj from Delhi. Pankaj, welcome to the program and ask your question. नमस्कार, मेरा नाम पंकज है, मैं दिल्ली वसंतकुंज से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अभी भी मार्केट जैसे देखा जाए तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी बिल्कुल हायर पे चल रहा है, तो क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि ये एक बबल की तरह ही है या फिर कुछ स्ट्रेंथ है इसके अंदर? पहला। दूसरा, जी हेलो Mr. Singh, were you able to listen to our listener's query? Yeah, I think I have listened to his first question about the market. Yes, please go ahead. So देखिए, ये बात सही है कि मार्केट पीक पर है और आज भी उसने काफी गेन किया, निफ्टी एंड सेंसेक्स बोथ जो है, क्योंकि ग्लोबल क्लू और जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड और लिक्विडिटी काफी ज्यादा है मार्केट में, इसलिए मार्केट नए रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहा है इसको। लेकिन हम बबल उस तरह से नहीं कह सकते, बट एक बात सही है कि जो फंडामेंटल्स हैं और जो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उससे अभी मार्केट का उतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता, बट सेंटिमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट एंड लिक्विडिटी इज देयर। जी, और हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं सतीश दिल्ली से। जी सतीश। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी सर। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने एक न्यूज देखी है, उसमें बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक जो एक नई करेंसी लाने वाला है जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया जा रहा है, तो सर ये कब तक आएगी? और जैसे हम अभी आजकल ये यूपीआई के जरिए भी हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी डिजिटल करेंसी मानी जा रही है, तो जो नई करेंसी डिजिटल करेंसी जो बताई जा रही है उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? देखिए, एक तो पहले ये है कि अभी रिजर्व बैंक इस तरीके से कुछ बहुत सीधे डिजिटल करेंसी ला रहा है और हो सकता है एक विचार उस तरह से आया हो, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, अभी उसको शायद मैच्योर होने में वक्त लगेगा। एक तो ये है उसमें। दूसरा ये है क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी का काफी एक चर्चा है, बट हम लोग उसको इंडिया में बैन करते हैं और उसको अलाउ नहीं करते उसमें। जहां तक आपने कहा कि ये जो यूपीआई और ये सब जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन है, बट वो डिजिटल करेंसी नहीं है। Okay, Mr. Singh, we were talking about, of course, we have been talking about the Sensex. It has been going up, but there is also fear among, or there is rather a certain reservation among some analysts that because of the budget proposals, which is focusing basically on, which has focused to a lot on, on high debt that the government is planning to take and the medium range fiscal deficit, the foreign institution, the foreign global rating agencies may have a negative attitude towards the Indian economy. What would you say on that? No, actually, you see, now it is an acceptable thing in this current scenario when unusual timings are there after this COVID crisis and contraction of the global economy as well as our Indian economy. So, it has added a lot of borrowings on the government side and record borrowing, and deficit is very high. For next fiscal, government has taken a higher target, but with the growth also, so because GDP size will also be higher. But nobody is seeing it as a negative move, the higher borrowing, because a lot of huge liquidity is available, and this year also government borrowed a large amount of extra borrowings compared to what was budgeted. And even the global rating agencies are also seeing that there is a revival happening in Indian economy. So I don't think that there will be any negative impact. Maybe we have to see how they rate our economy, all these rating agencies, but at the same time, investors are looking in an effective manner and
they are looking India as a favorable destination of their investment. जी, और अब हमारे अगले कॉलर नोएडा से हैं फोन लाइन पर एसपीएस जैन जी। एसपीएस जैन जी, कार्यक्रम में स्वागत। हाँ, नमस्कार जी। अरविंद सिंह जी, नमस्कार जी। नमस्कार। बजट में एक टेक्निकल टर्म यूज किया था, डीमोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स लाइक रेलवे लाइन, एयरपोर्ट्स। तो ये क्या डिसइन्वेस्टमेंट से डिफरेंट टर्म्स है या सेम है? अगर डिफरेंट है तो ये किस तरह से वर्क करेगा इन कलेक्शन ऑफ इन द अरेंजमेंट ऑफ द रेवेन्यू? हाँ, देखिए, ये मोनेटाइजेशन की बात की है उन्होंने कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, जिसमें रेलवे हैं, गोडाउन्स हैं, रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, पोर्ट्स हैं, तो उसमें यह है कि उनको एक सर्टेन पीरियड के लिए अगर कोई कंपनी आकर के उसको ऑपरेट करने के लिए आती है एंड विद फिक्स रेवेन्यू और रिटर्न टू द गवर्नमेंट, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव टू बोरो मनी or to give on the lease to raise more money for the government to monetize these assets. That is the point. And now we have been joined by Deepak from Delhi. Deepak, welcome to the program and please ask your question. हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी देखिए मार्केट इतना ऊपर है, सब कुछ है, पिछले 4-5 महीने से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, कुछ 1-2 वीक को छोड़कर। फिर भी डोमेस्टिक जो मार्केट है, डीआईआई है, उनको क्यों नहीं भरोसा आ रहा है मार्केट को? हमें पिछले कुछ महीनों से सेल ही करते जा रहे हैं, वो बिल्कुल परचेस पे उनका बिल्कुल फोकस नहीं है। जी हरवीर जी। हाँ, ये पॉइंट देखिए, जो भी आपने सही कहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है उनका एक स्ट्रेटजी के तहत ही वो कर रहे होंगे। और क्योंकि एक चीज आप देखिए कि जहां से जो ज्यादा पैसा एफआईज एफपीआई के थ्रू आ रहा है, अगर हम वहां देखें, वहां पे जो मनी पैसा है और लिक्विडिटी है, उसको पार्क करने में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं है। एवरीबडी सी है कंपैरेटिव रिटर्न उसका एक वहां पे अगर मान लिया कहीं लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में या बैंक्स में या बॉन्ड्स में, उसमें उसको क्या रिटर्न मिलता है उनको, और हमारे यहाँ क्या रिटर्न मिलता है हमारे मार्केट्स में, तो उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद ये लोग यहाँ पे लगाते हैं। सेम थिंग इज और डीआई, उनके लिए भी और दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बॉन्ड में जाएं, डेट में जाएं, और हो सकता है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर उनको अच्छा रिटर्न दिख रहा है, डेफिनेटली दे कैन टेक आउट बुक द प्रॉफिट ऑन दैट एंड कैन री इन्वेस्ट। सो ये उनका अपना स्ट्रेटजी होगा। जी, और आपने हरवीर जी एफपीआई की बात करी, तो एफपीआई ने फरवरी के पहले 5 कारोबारी सत्रों में ही भारतीय बाजारों में 12,266 करोड़ रुपए का निवेश किया है। डिपॉजिटरी के आंकड़े जो बता रहे हैं, तो एफपीआई जो इतना तगड़ा निवेश कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो उनको भारत की इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ तो एक मजबूती के कुछ संकेत दिखते होंगे। नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो पैसा है जो यहाँ पर लगता है आके, उसका मकसद होता है उसके ऊपर अर्निंग्स। तो अर्निंग का जो रेशियो उनको मिलता है जी, एक बेनिफिट उनको जो एक्सचेंज रेट होता है उसके ऊपर भी वो एक बेनिफिट्स देखते हैं कि सेम डॉलर में क्या यहाँ पे वो असेट्स कितना खरीद सकते हैं, या जब वापस ले जाते हैं तो उनको उसका कितना एडवांटेज है। एक तो ये फैक्टर्स हैं। दूसरे के जो डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स में उतना रिटर्न नहीं है जी, और हमारे यहाँ बिकॉज इकोनॉमी ग्रोइंग इन अ बिग वे और डाइवर्सिफिकेशन बहुत हो रहा है, तो उनको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट स्टॉक्स में आकर के इन्वेस्ट करने का। बट आप देखिए कि कोविड के टाइम पे बड़े पैमाने पर उन्होंने विड्रॉ बहुत किया था, जो है पैसा उन्होंने निकाला था मार्केट से। उसके बाद फिर उनका काफी थोड़ा दिन के बाद वापसी होती है। So it means that they are still seeing Indian market as an attractive destination to make money. And now we have a listener from Delhi, Dinesh. Dinesh, welcome to the program. Please ask your question. नमस्कार सर। नमस्कार मार्केट मेंबर की टीम को। जी दिनेश जी। जी, मेरा सवाल सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में है कि एक तरीका तो ये होता है कि जब वो इशू आता है तो आरबीआई से कस्टमर खरीदता है और 8 साल की होल्डिंग के बाद जब उसको बेचता है तो उसको कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिलती है। और अगर वो उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदता है और ऐसे एसडीबी को खरीदता है जो 3 साल या 4 साल पहले इशू हो गया है और जिसके मैच्योरिटी में केवल 4 साल पेंडिंग है और 4 साल होल्ड करके उसको बेचता है, तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिलती है कैपिटल गेन में? Dinesh, we will please request you to switch off your radio set right now. देखिए, ये टैक्स एग्जेम्पशंस के जो रूल हैं वो आपको उस वक्त का जो फाइनेंस बिल है
उसमें जो प्रोविजन किए गए उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे जब वो सीरीज आए, बिकॉज ये आपका इसमें चेंजेस भी होता है, तो यू हैव टू लुक अकॉर्डिंग टू दैट। और यूजुअली लोग जब लेते हैं तो उसका मकसद एक ये है कि आप कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट जो रिडेम्पशन पे मिलता है वो तो ठीक है इंडिविजुअल्स को, प्लस ये भी है कि आप उसका फिजिकल फॉर्म ना लेकर के आप उसको डीमेट फॉर्म में आप लेते हैं तो आपकी तमाम सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं उसको लेकर के, और उसमें अगर जो भी अप्रिशिएशन है यू गेट्स द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और डिजिटल मोड में लेने पर गवर्नमेंट सरकार को छूट भी देती है उस पे प्रति यूनिट। अगर आप पेमेंट डिजिटल मोड से करते हैं तो उस वक्त भी एक सर्टेन अमाउंट आपको जब आप बाई करते हैं उस वक्त आपको मिलता है। और अब मोदी नगर से हमारे साथ अशोक फोन लाइन पर हैं। जी अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हाँ हेलो जी हेलो। हाँ मैं अशोक बोल रहा हूँ मोदी नगर से। जी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा हरवीर जी से सवाल ये है कि अब जैसे बजट भी आ चुका है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आ चुकी है, तो ऐसे में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक में दोनों इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा कुछ डिटेल बता दीजिए थोड़ा सा, कौन सा ठीक रहेगा? देखिए इसमें अशोक जी एक तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने बजट में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको रिकैपिटलाइजेशन के लिए भी 20,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। उसके साथ ही 2 बैंक्स का डिसइन्वेस्टमेंट करने का भी अनाउंसमेंट किया है। तो एक तो ये आने वाले दिनों में पता लगेगा वो कौन से बैंक्स को वो कह रहे हैं, और सबका आईडीबीआई और एक कोई हो उस तरीके से। लेकिन ये है कि ये कौन सा बैंक किस तरीके से पब्लिक है या प्राइवेट है, उसका फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसका स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपको इंडिविजुअल कंपनी और स्टॉक्स को देख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसमें। And we have Vijay from Chennai right now with us online. Vijay, welcome to the program. Yeah, good evening, everybody. And Mr. Harveer, I have a question on RBI's policy that came late last week. One particular issue concerning the public is the GSEC, the government securities, has been thrown open to retail investors. Very little is heard about it. Please tell me on 2 points. One, how viable and what is the interest rate on GSEC? And secondly, is it true that retail investors have to go? Mr. Singh, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन आप जितना भी समझ पाए हो उनके सवाल को हरवीर जी, तो क्या कहेंगे उनके सवाल पर आप? बट देखिए, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो आता है उसी वक्त आपको पता लगता है कि किस ये जो गवर्नमेंट का जो ऑक्शन है किस रेट के ऊपर वो लोग ऑक्शन कर रहे हैं उस वक्त, डिपेंड्स ऑन दैट। अभी और इंडिविजुअल्स के लिए खोलने का मकसद ये है कि लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। वो स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, एंड इशूड बाय द आरबीआई ओनली। And we have Dhruv Singh from Delhi. Dhruv, welcome to Market Mantra. You have a question for our expert, Mr. Harveer Singh. Please go ahead. हेलो। Hello. Yes, Dhruv. Please ask your question. जी। हाँ जी, मैंने गाड़ी ली थी जी क्या? हाँ, गाड़ी ली थी मैंने। एक तो वो मेरी तबीयत खराब होगी तो मैंने उस गाड़ी की किस्त नहीं दे पाया हूँ। कमर्शियल गाड़ी ली थी जी। तो वो जो है कि बैंक वाले जो गाड़ी उठा के ले गए। अच्छा। तो वो कह रहे कि अब तुम किस्त भरो, 3 साल से ऊपर हो गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जी? उसके लिए जो जहाँ जिस बैंक से आपने लोन लिया था उनसे आप बात करके उसको नेगोशिएट कीजिए, और ये म्यूचुअल उसमें नेगोशिएशंस में कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप दोनों जो पक्ष हैं वो सहमत हो और उसके हिसाब से उसमें तय होगा। अगर मान लिया बैंक्स ने आपकी गाड़ी ली है और फिर उसको ये तो उन्होंने ऑक्शन किया होगा, उससे क्या कितना सेटलमेंट किया है, वो सारे डिटेल्स आपको निकाल के बात करनी पड़ेगी। गाजियाबाद से गौरव लाइन पर हैं। हेलो गौरव, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्ते हरवीर जी, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। सर मेरा सवाल है, क्या किसान जो अभी फसल कट जाएगी हमारी बुंदेलखंड में मटर वगैरह की, उसके बाद जुलाई तक कुछ नहीं होता है और धूप अच्छी होती है, तो क्या कोई स्कीम है सरकार की जिसमें हम लोग अप्लाई करके सोलर पैनल लगवा ले 4 महीने के लिए? क्योंकि 4 महीने हमारा कुछ काम है नहीं और वैसी गर्मी होती है, तो सोलर पैनल हमें मिल सकती है क्या किराए पे? सरकार की ऐसी कोई स्कीम है क्या जो हम और उसको हम इंटर कनेक्ट करते हैं ग्रिड से और पैसा मिल जाए हमें? कुछ ऐसी कोई स्कीम है क्या सरकार? टेम्परेरी उस तरह का तो मुझे लगता नहीं कोई स्कीम हो, बट गवर्नमेंट की एक स्कीम है कुसुम करके,
तो उसमें वो फार्मर्स के लिए ही है कि आप अगर मान लिया सोलर पैनल लेते हैं, लगाते हैं, उस पर सब्सिडी है और उसमें जो आप अपने एग्रीकल्चर यूज के अलावा जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट करते हैं उसको आप ग्रिड को बेच सकते हैं, तो वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आपके पास स्पेयर लैंड उस तरह का अवेलेबल है तो वो तो कुछ महीनों के लिए तो नहीं, आप उसको लगातार वर्षों तक जब तक आपका वो काम करेगा पैनल्स या जो पावर जनरेशन होगी तब तक रख सकते हैं। और ये जरूर है कि ये फार्मर्स के लिए स्कीम है और उसमें बेनिफिट्स भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आप देख सकते हैं। And now we have Ashu from Ghaziabad with us. Ashu, welcome to the program. Yeah, hi. So my question is very simple. It is regarding metal stocks, particularly steel. Looking at the current level, do you think so it is advisable to buy steel stocks? And also, is there a change in policy of India, like we are restricting our import from other countries? That is why steel prices are going up? Or what is the basic reason, in a nutshell, why the steel prices are going up? Is it only because of the stock market is going up overall, or it is something change in the policy? Thank you. Actually, both the reasons are there. As economy is improved, a lot of investment is happening on infrastructure side, so the steel demand is going up. But at the same time, government has also restricted low cost steel from outside, putting import duty on that. So this import restrictions are helping to the domestic industry. But at the same time, in the last few months, prices have gone up very steeply and companies are making a lot of profit. If you see the results of these companies, there is huge profit these companies are making, and the market may be reflected to that. But at the same time, one senior minister also made some statement about the steel companies and cement companies that they are increasing the prices through cartelization. So it is not necessary that things may remain same for future. It is very difficult to say, because if these kind of things are coming from the senior ministers from the government, then there may be a policy change. And we have Ratnakar from Mumbai with us right now. Ratnakar, please ask your question. Hello, good evening. Good evening. मेरा सवाल है कि अभी मार्केट आज फिर 700 पॉइंट ऊपर गया, तो जो छोटे इन्वेस्टर है तो उन्होंने अभी परचेसिंग चालू रखना चाहिए या अभी करेक्शन आ सकता? देखिए, मार्केट जिस तरह से लगातार रिकॉर्ड जा रहा है और पिछले देखिए 6 सेशन में बहुत ऊंचे मार्केट गया है, लिक्विडिटी है और इंस्टीट्यूशनल बाइंग ज्यादा है, तो इस तरह का जो इतना तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है उसमें मेरे ख्याल से स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइजेबल है या तो वो म्यूचुअल फंड रूट लें, जिससे कि उनका सारा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक्स में ना जा करके वो बैलेंस हो और एक्सपर्ट्स के जरिए उसका डिसीजन हो कि किस तरह से उसको इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज मार्केट से थोड़ा स्मॉल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए इस स्थिति में। जी, और अब एशियाई और यूरोपीय बाजारों की बात करें तो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में पिछले सप्ताह की तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। जापान का निकेई 2% से भी अधिक की तेजी दर्ज करके 3 दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% का उछाल रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.8% की बढ़त रही। हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% मजबूत हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% की गिरावट आई। अंतर्देशीय कारोबार के दौरान आज यूरोपीय बाजारों में भी बढ़त देखने को मिली। लंदन के FTSE 100 और फ्रांस के कैक दोनों में 0.8% की मजबूती रही और जर्मनी का डैक्स 0.2% बढ़त में रहा। The rupee today appreciated 4 paisa to 72 rupees and 97 paisa against the US dollar in afternoon deals. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also rose 0.13% to 91.16 in intraday trade. Mr. Singh, we've been discussing budget a lot. What do you see in the budget for the rural economy? How do you see it? What are the benefits or what are the plus points or positives for the rural economy in this budget? Government has increased the provision for rural infrastructure in this budget. At the same time, to implement Swamitva scheme,
to all the states is also very important step to give basically the documentation of the ownership of their houses and all to everybody. It is important, as well as it will also have a future to make future planning very easy and clear in the rural area. At the same time, other provisions are also made, like rural roads, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and Manrega at 75,000 crore. So these are the very important aspects. At the same time, in agriculture, government is focused on diversification by giving more money to the sector like fisheries, dairies, and the processing sector. So I think these things will add more impetus to the rural economy. Mr. Singh, a lot is being expected from the U.S. The U.S. stimulus package that's to be announced. So how do you see the stocks reacting to it this week? What would be the outlook for Indian stocks this week once the U.S. markets open? Yeah, actually, we have to wait and watch on this because markets are going really in a big way on the upward side. So, and it is on the positive indication that economies are growing, as well as due to this vaccination and COVID pandemic is coming under control. So normal activities are going to happen in all the economies. So that's why, and this huge US package is also coming, so that it will add more liquidity, and out of that liquidity, a lot of money may come toward the market in emerging economies like Indian market. Moving to commodities, oil today rose to trade above $60 a barrel amid improved demand outlook worldwide. Hopes that a $1.9 trillion COVID-19 aid package will be passed by U.S. lawmakers as soon as this month also boosted crude prices. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $60.10 per barrel, while WTI crude prices were around $57.60 per barrel. Mr. Singh, of course, we just talked about the stimulus package that is expected to be passed in U.S. Now, on the one hand, it's good for the stock markets, but it has also led to a rise in the prices of oil. How would you see that? I mean, how do you see that? Because that's going to have a direct effect on inflation. Yes, if you see, liquidity was changing the markets, but at the same time, if you see, instead of stocks now, liquidity is also changing the commodities. And globally, the commodity prices are going up. There is a upward trend, whether it is cotton, whether it is oilseed or oil meal or grains. All these commodities are looking upward side, and recently FAO issued its index on food prices, which has reached, I think, some 48 or 72 months higher side in just few months, from May 22 to January. So it indicates that part of liquidity is going that side, and it will have an inflationary impact. Maybe it will go also to energy, also like if crude oil prices goes up, like it is showing that indication. So definitely it will affect our economy, as well as the inflationary pressure will increase in Indian economy. जी, और अब बात कर लेते हैं सोने की। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोना 300 रुपए महंगा हुआ। सोना 47,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 540 रुपए की मजबूती से 69,280 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बनी रही। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,822.50 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.30 पर कारोबार कर रहे थे। Mr. Harveer Singh, thank you so much for joining us on the program and replying to our listeners' queries. And it is now time to close the program. Before we close, a reminder of the headlines. Thank you, sir. The headlines: benchmark domestic stocks climb more than 1% to hit fresh record highs. Sensex closes above 51,000 mark. Nifty settles above 15,000 level. Global stocks log gains amid optimism over economy recovery, and Brent prices rise to trade beyond $60 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with another edition of Money Matters. Do join us then. Till then, goodbye. Namaskar. Market Mantra.